What is your life's goal and why? Archana ji, now life goal earlier was bringing up children, fulfilling the responsibility. Now children are the jobs and all. So now once I came into this Mokshadam, now that self-care and I can feel the difference also. And as you tell, after 20 years, what you will be, or I mean, how your body will be, and all that thing will be in my mind. Like I'll be thinking, my focus is more on that. To live a very happy life and with fulfillment. There is many things. First is my health, inner peace, do more seva, spreading the knowledge. First of all, I have to learn, spread happiness. And then I think that's the goal of my life. My first goal is to stay healthy, happy, keep everyone happy, do something good for the community. A step forward moving towards moksha, which is, the definition of moksha. So I don't want to repeat it, but Very good. That's a nice answer. You know the definition, so I don't have to repeat it. I'll tell this to all my teachers also if they ask me any question. Even in the Viva or exam, we should tell like this, such a nice answer. you know how long that process is. So the short-term goal is to take care of kids, make sure they study well, continue on a right path, but at the same time, take care of myself, my health, control on emotions, and be more peaceful within myself. My goals have also been changing. In the beginning, I had lots of financial goals, but now my goal is to become a karma yogi. Main goal for everybody is only one. What Pradeep ji said is moksha, which simply means happiness and peace of mind. Okay, freedom from, everybody wants to achieve that freedom. Okay, whether it's mental freedom, physical freedom, financial freedom, freedom from people who are troubling us, we all want to achieve that. Why we are even taking care of our kids? Because they can become free in whatever they want to achieve, they achieve. So ultimate goal, we are only going towards happiness. Even what we are doing yoga or reading Tattva Bodh, it's also for happiness. The ultimate freedom we all want to feel. But मोक्ष का द्वार जो है, happiness का जो door है, वो अंदर से खुलता है और कई बार हम बाहर देखते रहते हैं, है ना, बाहर की तरफ से खींचते रहते हैं, बट वो खुलता अंदर की तरफ से है. हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि if we our kids study well or if I get financial freedom, then the happiness. Definitely finance is a very big thing. Kids also being settled and happy is also a very big thing. But that inner happiness doesn't come from anything outside. वो understand करने की पहली बात है. उसके पीछे कितनी भी मेहनत कर लें, okay, suppose you're very settled in your financial, your kids are very happy and settled, but if you don't work inward, you will not achieve that permanent peace and happiness. 3 चीज़ें काम आती है. जैसे मैंने बोला नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो शक्ति के बिना शिव नहीं मिलता है. शक्ति is that energy that will take you towards the thing that is we are all looking for. So इसमें 3 तरह की शक्ति काम आती है. इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति. सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए. इच्छा is the desire that you want to achieve that freedom for anything. And second is gyan. You should know the knowledge, the means, how it is to be done. So a lot of people have that iksha. They also know. Like for example, they want to get up in the morning. They also know that it's important for them to get up in the morning. Then and why it is important. But ये दोनों potential energy है. अब आपको पता है potential energy doesn't go anywhere. You need to introduce a third type of energy, which is kinetic energy, which is called Kriya Shakti. That means you have to take action. So these 3 Shaktis have to be with you: Iksha Shakti, Gyan Shakti and Kriya Shakti. Then only a particular desire is fulfilled or that permanent piece of happiness you can go towards it. जो freedom का है वो सिर्फ inward work से आता है. Outside कितना भी आप अपने बच्चों को देख लें, whatever you do to the world, it's not going to come ultimately. So the number 1 goal of the life should only be taking care of your mind and growing within. That's all it should be. Rest everything are duties that you have to do while being a karma yogi. Yoga start with dharma. Dharma doesn't mean puja पाठ, ये सब कुछ नहीं होता है. होली दिवाली मनाने से कोई धर्म नहीं होता fulfill. Dharma is like कर्तव्य पालन. That's all it is. While performing your duties, how much calm you are, how much you're still working inward, how much you're using your worldly activities as a means for spiritual growth. Whether it's preparing tiffin for lunch for kids or whether it's mopping your floor, whether it's driving your car on a busy highway, how calm and how connected you're within, that is Karma Yoga. This is not a one-time thing that you do, like or once a week or twice a week you do this. It is your attitude. It is
lifelong dedication. I don't know how many of you have watched this movie called Manji the Mountain Man. Anybody watched that? Have you heard of this movie, Manji? You have watched. He was famous with Manji Baba. He was a person. He used to live in a village in Bihar. This is based on a real story, and this movie is really, really nice. Very nice movie. Very inspiring movie. This person's wife passed away while she was pregnant because he was not able to take her to the hospital, which was just across a mountain. He had to cross the mountain and then go. So somehow he was not able to do that, and by the time he transfers that journey, the wife was dead. He used to love his wife so much that he was very angry at the mountain. The hospital was just across behind the mountain. So every morning he only had a cheni and a hathoda. You know what a cheni and a hathoda is? Cheni is like a small tool and hathoda is like you just break rock. He used to take his cheni and hathoda and go and cut that mountain little bit every day. He was so angry and everybody used to think he has gone mad. I don't know, he did for like 15-20 years and he made a hole in the mountain. He created that path. Nobody helped him. And finally, when almost it was done, then I think the government helped him clear the path. And because of him, I don't know how many kilometers of going across the mountain was saved for those villagers. So he had so much of madness. Do you have that madness to achieve the freedom? Think for yourself. जैसे 12th standard के exam में हम बिल्कुल 1 point focus होता है ना? Do you have that kind of focus with yourself every moment? If not, these 9 days is for you. Do some sadhana. Whatever you can do, I don't know. It's your path. You have to select what you want to do. Take one thing for these 9 days and start doing it. It's like studying for 12th standard exam, almost like doing a tapasya. Take one thing and do that every day for 9 days. If you haven't started yet. तो तपस्या करनी है. Dialogue है ना, जो बन गया वो बन गया. क्या बन गया? वन कौन गया था? राम जी वन गए थे. तो जो अंदर से सशक्त है, जिसने अंदर अपने आप में वो शक्ति को समा लिया है कि मैंने जो सोचा ही है अपने पाथ में वो करना ही है मुझे, वही फ्री है, उसी को मोक्ष मिलता है. मेन मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग? मेन मिस्टेक करते हैं कि वी वांट टू इम्प्रूव ऑन आवर वीकनेस, या फिर वी कीप थिंकिंग अबाउट अ वीकनेस. कैसे मैं अपना वजन कम करूं, कैसे मैं सुबह उठूं. वीकनेस को सोचना ही नहीं है. यू डोंट हैव टू फोकस ऑन योर वीकनेस. सुबह उठ के क्या थॉट आता है? हाउ डू आई गेट रिड ऑफ माई दिस प्रॉब्लम इन माई लाइफ, है ना? ये थॉट आता है तो दैट मीन्स यू आर फोकस्ड ऑन वीकनेस, विच इज अ वीकनेस इन इटसेल्फ. व्हाट यू हैव टू फोकस इन कि मेरा स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव करना है. व्हाट डू हैव टू इनकॉर्पोरेट, बिकॉज बॉडी एंड माइंड इज लाइक द फिक्स्ड घड़ा. ओके, घड़ा जो पुराने जमाने में विलेज में होता था जिसके अंदर गंदा पानी भर गया, उसको उल्टा नहीं कर सकते थे. हाउ डू यू चेंज द वाटर ऑफ दैट घड़ा? बाय फिलिंग द गुड वाटर फ्रॉम द टॉप. सो डोंट फोकस ऑन योर वीकनेस. अगेन यू हैव टू थिंक मोक्ष इज एज यू सेड प्रदीप जी, इट्स अ वेरी हाई गोल. We don't know when we'll achieve that. It's off the chart goal. So मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी ना. क्लास टेस्ट की पढ़ाई है तो एक तरह से मेहनत करते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन की तैयारी करनी होती है तो दूसरे तरह से करते हैं. दिस फ्रीडम दैट यू वांट टू अचीव, द परमानेंट फ्रीडम, is such a big goal. So you have to work 24/7, but without stress. That feel the love for yourself. Any one sadhana. Right now you may not feel that you have any of the signs and symptoms of moksha. You know, you get stressed out or you think about your weakness or people troubling in your life or whatever the problem you have in life. But मेहंदी के पत्ते में मेहंदी का लाल कलर तो नहीं दिखता ना, प्रोसेस होता है ना, फिर वो कलर दिखता है और चढ़ता है. तो you have to go through the process. So you have to focus on the process as opposed to the end result. Once end result तय कर लिया, 100% convinced this is where I want to go, and goal एक ही है. They're not 10 goals, no short term, no long term in this path. Only one goal, peace of mind, moment to moment awareness. Where is my mind thinking? Is it outward in the world? दरवाजा मैं किधर से खोल रही हूँ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ. उसी तरह जिस तरह दूध में घी होता है, उसको चर्न करना पड़ता है, अपने मन का भी मंथन करना पड़ता है उस दिव्यता को निकालने के लिए, प्रकाशित करने के लिए. वो प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़ता है. उसके लिए साधन चतुष्टय, षट संपत्ति सब पढ़ना पड़ता है. शुद्ध आहार, आचरण, बिहेवियर, एवरीथिंग धीरे 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 फिर रंग चढ़ने लगेगा. समझ में ये आने लगेगा कि आपके अंदर ही वो शक्ति है जो शिव से मिलना चाहती है. वो ऑलरेडी है बट आपको, आपके मन को पता नहीं है. इस चक्कर में भी नहीं पड़ना है जैसे किसी दिन प्रैक्टिस छूट गई, उस चक्कर में भी गिल्ट नहीं आना है. किसी भी कर्म बंधन में पड़ना नहीं है. सपोज यू मिस योर प्रैक्टिस वन डे, डोंट फील गिल्ट अबाउट इट, कम बैक अनदर डे और डू द डबल द सेकेंड डे. मान लीजिए आप 108 बार मंत्र जाप कर रहे हैं, अब मिस हो गया तो वीकेंड पे 216 बार कर लीजिए टू कॉम्पनसेट फॉर दैट डे, बट डू इट. पाप और पुण्य के चक्कर में भी नहीं पड़ना है. ओके, उसमें बहुत लोग डर के रह जाते हैं, डर आ जाता है. बिकॉज ऐसा बोल सकते हैं, अगर गलत काम या पाप जो है लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है. दोनों है जंजीर, दोनों फंसाता है. उस चक्कर में भी नहीं पड़ना है. पढ़ना किस चक्कर में है कि मेरा माइंड कहाँ है अभी, वेयर इज़ माई माइंड थिंकिंग, व्हाट इज़ इट डूइंग. ऑब्वियसली आप काम कर रहे हैं ऑफिस का, घर का, तो माइंड उस पर ध्यान देगा. बट अगर माइंड वर्ल्ड में ज़्यादा फंस रहा है, उसके इसके बारे में सोच रहा है, ब्रिंग इट बैक टू योर प्रैक्टिस. तो यही मुझे बोलना था कि बिकॉज नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, वो शक्ति आपके अंदर ही है, वो शक्ति को अंदर से फास्टर करिए.
लेटेंट एनर्जी सब में होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी को करिए, काइनेटिक एनर्जी थ्रू योर मंत्र जाप, थ्रू योर sadhana, through whatever means you can do, whatever you have learned so far, do that, do it a little bit more intensely for these 9 days. Any questions? That as you told, thinking of other people and all, that became clear once that thing, each person's unique journey, when that sank into me, no, now I am not bothered, like no, earlier that unhone bola aise or how I should have handled that used to affect me a lot. But once this thing sang into me, like, even if it's children, anybody, then immediately I can accept that, oh, it's their unique journey, I don't have to interfere in that. And then I'm cool. Karma yoga, no? You're telling that each small, whatever action you're doing. And once this step is clear, wondering, mind, no, about all other things, then this karma yoga comes up. Guilt, you know, I was feeling, overcome that. When if I'm not able to get up and do yoga, then I feel the guilt. So as you told, not to waste time on the guilt and just go on doing things. That energy, don't waste it on that. Do something. I really like the way you said कि 9 days नवरात्रि है, इसमें कुछ take something on I want to do. मैं already वो थोड़ा जाप वगैरह मैंने शुरू किया हुआ है, तो I feel very good about it. और मुझे लग रहा है कि थोड़ी मंद गति से मोक्ष की तरफ निकल पड़ी हूँ. अर्चना जी, उसी तरह एक सच्चा गुरु ही हमें भगवान से मिलाता है. तो हम लाइक एज यू आर क्लियरिंग आवर डाउट्स, नो, द वे दैट सर ने भी पूछा, प्रदीप सर ने जैसे दोनों ने अपना एक्सप्रेस किया, तो यू आर करेक्ट, यू आर लाइक नाउ हिज डाउट इज क्लियर, automatically now he'll take into next. So each person's ka each level, no, that unique journey where they have reached and next. Thinking from moksha point of view, where we are and where they are, and हमको दूसरे की बात नहीं करनी है, उनका अपना प्रारब्ध कर्म है, वो जो कर रहे हैं, हमको उनके जर्नी से क्या फर्क पड़ने वाला है. इफ यू कैन लर्न फ्रॉम एनीबडी यू लर्न, अदरवाइज लीव देम. वी डोंट हैव टू गेट इनटू एनी एनालिसिस फॉर एनी पर्सन. मैं तो इसी में विश्वास करती हूँ, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. अगर आप किसी से कुछ भी सीख सकते हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास ऑल्सो, और एनीबडी यू लर्न. अगर आपको लगता है वो रिलेवेंस में, तो आप उससे ले लीजिए और आगे बढ़िए. कोई भी गुरु हो सकता है, किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं. एक नेगेटिव पर्सन से भी सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना है. चोर के 2 बच्चे थे, तो एक बच्चा पुलिस बन गया, दूसरा चोर बन गया अपने बाप को देखते देखते. आप किसी से भी पॉजिटिव इंस्पिरेशन ले सकते हैं या नेगेटिव इंस्पिरेशन ले सकते हैं. हमको अधिकार नहीं है किसी के कर्मों पे कमेंट करने का. आप अगर किसी से सीख सकते हैं और आपको लगता है कि वो आपके जर्नी में रेलेवेंट है, उससे ले लीजिए. बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि वी शुड गो टू द सोर्स of knowledge. भगवद गीता, उपनिषद्स, जो कि रियल गुरु हैं. रियल गुरु इज नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म. रियल गुरु तो भगवान ही है, ईश्वर ही है. ठीक है, हमेशा उसको माइंड में लेके चलना है. एंड दैट गुरु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम माई ओन ट्रू सेल्फ. बस वो भगवान की अगर कृपा होगी तो हमको ऐसे गुरु फिजिकल फॉर्म में सामने आ जाएंगे जो हमको थोड़े गाइड कर देंगे. दैट्स ऑल इट इज. बट अल्टीमेट वो गुरु है, ईश्वर. किसी भी पर्सन को whatever they are managing या the way they are dressed, we cannot say what is the depth of their mind. See, knowing kriyas or knowing different techniques or doesn't really mean that you're close to moksha. Or if somebody is in a corporate dress, that also doesn't mean you're far away from moksha. We don't know. It's very difficult to किसी रियलाइज पर्सन का डेप्थ समझना बहुत मुश्किल है. उसके बाहरी आवरण से नहीं समझ सकते हम. So we don't know unless you spend some time with that person yourself, unless you have a first-hand experience yourself and their behavior and their acharan or the way they deal with the situations of life. It's very difficult to measure the depth of any person who is in that path. We don't know. That's why we cannot comment. अगर मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, अगर मैंने उनको काम करते हुए देखा है, तो ही हम उस पर कमेंट करने का अधिकारी हो सकते हैं कि हमको उनके साथ काम करना कैसा लगा. Some people may have perspective on the same person. We don't know. Because it's not our experience, isn't it? So I have done a lot of courses. I'm telling you, I've done all the courses. Everybody, all available courses out there. But मुझे किसी में इतना डेप्थ मुझे उपनिषद और भगवद गीता में लगा, उतना डेप्थ किसी में नहीं लगा. What we have to learn is we have to focus on our journey within and focus on core practices. जैसे as a physio also, when a patient used to come to me, if they had neck pain, I started digging and finally found out sometimes that they have a relationship issue. That's why they have neck pain. It's neck pain is not the main problem. Main problem is some stress going on in the background. So when I started listening to all these gurus or doing all the courses, I still wanted to go to the core. Where's the origin of what even they are saying? I didn't want to get any sort of, you can call an agent or a in between for me and the knowledge. So that's why I started reading or investing time more in studying the books, our own core shastras, because I wanted to get the knowledge firsthand. And then along the journey, I found certain wonderful teachers
And those are mostly who have the expertise of Bhashya. Bhashya means commentaries of Shankaracharya. That's where I realized Shankaracharya is the person to follow, Adi Guru Shankaracharya. He's done the best work on these Upanishads and produced great commentaries on it. So that's where I go to all the time if I have to study anything. Even the Tattva Bodh we are studying is from Bhashya of a Shankaracharya based teachers. So you should always go to the core, because मैंने ये realize किया over my journey that ये course करने से वो course करने से actually कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा. कितने लोग सालों साल योगा करते रहते हैं बट उनके माइंड में कोई फर्क नहीं पड़ता है. They still have that all those काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर्य, विकार होते हैं सारे, और गिल्ट होता है बहुत किसी चीज़ का. वो सब हटाने के लिए हमको जड़ तक जाना पड़ता है. मन को समझना पड़ता है. मन को समझने के लिए सब टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. भगवत गीता में कृष्णा ने बोला इंद्रियों में मैं मन हूँ, मतलब मन इतना पावरफुल है कि इसको भगवान का भी दर्जा दिया गया है. लेकिन मन अगर राइट दिशा में जा रहा है तो मन अलोन, जैसे मैंने उसी दिन लास्ट क्लास में बोला था, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, और कुछ भी नहीं है. मन को समझ लिए, मन को टेम कर लिए, इट्स लाइक ट्रेनिंग योर ड्रैगन. मन को अंदर घुसा लिए, मन को राधा बना लिए तो डजंट मैटर. फिर उस पर्सन पे कोई एलिगेशन लगाए, कुछ लगाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर वो सही पाथ में तो सही पाथ में. हमको क्या करना है, हम इतना ही कर सकते हैं कि हमारे पाथ में जो भी लोग आते हैं, हम कुछ भी न्यूज़ भी सुनते हैं, ओके, जैसे अभी ईरान और इजराइल का न्यूज़ भी हो रहा है, आप उससे क्या सीख सकते हैं अपने ग्रोथ के लिए. किसी से भी, मैं बोलूँ ना, किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं, किसी भी चीज़ से आइडिया आ सकता है अपने ग्रोथ के लिए. वो आपको किस दिशा में लेके जा रहा है वो न्यूज़ भी, वो देखना है हमको शट डाउन नहीं करना है दुनिया से कि अरे नहीं मैं न्यूज़ नहीं देखूंगी, वॉर का ये नहीं करूंगी. नहीं, सब कुछ देखना है. बी अवेयर, दैट्स आवर नेचर. बट व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम दैट, और यू जस्ट सेइंग समथिंग बैड अबाउट इट. अरे क्या चल रहा है दुनिया में. नहीं, ठीक है, इतना कंट्रोवर्सी, इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दुनिया में. एटलीस्ट इफ आई कैन बिकम कॉन्फ्लिक्ट फ्री, आई कैन क्रिएट 10 more people who are conflict free. वो सोचना है हर समय. मेक सेंस प्रदीप जी? 200%. हमारा अधिकार सिर्फ अपने मन पे होना चाहिए और किसी पे नहीं. जो हमारे पेट से आते हैं, बच्चों पे होता नहीं अधिकार. नो, बट यू आस्क्ड इट ओपनली, विच यू शुड एक्चुअली. दैट इज व्हाट दिस ओपन फोरम इज. यू शुड आस्क दिस क्वेश्चंस ओपनली एंड क्लियर योर डाउट्स. कुछ भी आ रहा है तो आई विल ओनली फॉलो आदि गुरु शंकराचार्य बिकॉज ही गिव immense knowledge. He is the father of my nation, of my mind. I really have a lot of respect for him. Whatever he's done is amazing. और उनका जो मंदन मिश्रा के साथ डिबेट हुआ था, मंदन मिश्रा बुद्धिज्म फॉलो करते थे, तो उन्होंने मंदन मिश्रा को डिबेट में हराया था, और उसके बाद मंदन मिश्रा उनके शिष्य बन गए थे, क्योंकि बुद्धिज्म उस समय बहुत फैल रहा था. एंड ही अंडरस्टूड द लिमिटेशन ऑफ बुद्धिज्म. उसमें वो क्लैरिटी नहीं है जो उपनिषद्स में है. तो वो समझते थे कि अगर इंडिया में बुद्धिज्म आ गया, जो साउथ ईस्ट एशिया में हो चुका था ऑलरेडी. ही वॉज सो कंपैशनेट. कैन यू इमेजिन अ 33-year-old थिंकिंग दैट माई गॉड, इफ दिस रिलीजन स्प्रेड्स इन इंडिया, विल लूज द एंटायर धर्म. Dharma in the sense, the core teachings of our Upanishads, of self-realization of what we are. बुद्धिज़्म में भी इतना डेप्थ नहीं है जितना हमारे इसमें डेप्थ है, जहाँ तक मुझे पता चला है और जहाँ तक मैंने सीखा है. उसमें भी लिमिटेशन है, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है. सम पीपल सेड बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ पे बुद्ध टेम्पल है जहाँ पे बुद्ध की मूर्ति लगी है, सब जाके पूजा करते हैं. तो क्लैरिटी उसमें भी नहीं है. बाकी रिलीजन तो आपको पता ही है, इसमें पड़े हुए हैं हेवन और हेल के चक्कर में, तो कहीं भी क्लैरिटी नहीं है. बट हमारे जो उपनिषद से क्लैरिटी आती है, और भगवत गीता को उपनिषद का सार बोलते हैं, ऐसी क्लैरिटी कहीं भी नहीं है. हमको अपने आप को उससे जोड़ के रखना है जब तक हम उसकी पूरी टीचिंग को एसिमुलेट नहीं कर लें. बाकी जिससे सीखना है, जो सीखना है सीखिए. एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग थिंग. मैं तो यही बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वही करिए. जहाँ से सीखना है सीखिए, अपनी बुद्धि को ओपन रखिए. मन में इच्छा तीव्र होना चाहिए, फिजिकल गति मंद हो सकती है. व्हाट इफ़ योर हाउस इज़ ऑन फायर, हाउ विल यू एक्ट. मन में ऐसा होना चाहिए, भगवान जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए. इतने सारे अपने गोल बोले ना, ये करना है वो करना, नहीं, कुछ नहीं, सारे गोल बेकार हैं अगर ये नहीं है गोल. ये मेन गोल होना चाहिए. बाकी सब सारे गोल अपने आप फुलफिल हो जाएंगे. मैं बता, अगर ये गोल तीव्र होगा ना, छोटे छोटे गोल की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी. पानी में डूब रहे हैं तो क्या गोल होता है, एक सांस चाहिए बस. वैसा होनी चाहिए मोक्ष की इच्छा, अति तीव्र. तो भगवान आपके पास दौड़ के आएंगे, गोदी में उठा के लेके जाएंगे. अच्छा बेटा नहीं, मैं सही बोल रही हूँ. माँ सबसे दयालु होती है. 9 दिन माँ का है, माँ ही को पता होता है उस बच्चे का फादर कौन है, वही लेके जा सकती है फादर के पास. बच्चे का पहला अनुभव माँ के थ्रू ही होता है दुनिया से, मैं ये बोलना चाह रही हूँ. तो उस माँ को पकड़ लीजिए, उस शक्ति को पकड़ लीजिए अपने अंदर. जब से मैंने आपकी क्लास अटेंड करी है, आई कैन सी लॉट ऑफ चेंजेस इन मी. आई एम स्माइलिंग अ लॉट सीइंग यू स्माइलिंग. मेन क्वेश्चन तो यही है जो आपने बड़ी बार आंसर कर दिया होगा, हाउ टू टेम द माइंड, मन, एंड हाउ टू स्टे हैप्पी विद इन. साधना यूजुअली क्या होता है ना, जैसे एंड प्रोडक्ट देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि कोई है जो अचीव कर लिया, उसको देख, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है हमको दिखता नहीं है. अब धोनी ऐसी धोनी तो नहीं बन गया, कितनी उसने प्रैक्टिस की होगी, या कोई भी हो जाए. जैसे मोने बोला ना 10,000 आवर्स ऑफ मेडिटेशन किया था किसी ने, किसी स्वामी जी ने, वो स्थिति पाने के लिए.
तो हमारे पास जो टाइम है, मैंने ऐसा सोचा था कि हम गृहस्थ हैं, हमको सबसे डील करना पड़ता है, क्यों नहीं एक एक काम को ही अपनी साधना बना लें। तो माइंड को टेम करने का यही एक तरीका है, वही कर्म योग है एक्चुअली, कि आप जो भी कर रहे हैं उस समय पीछे में आप नाम जप करते रहिए या सांस पे ध्यान देते जाइए। रादर देन थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, यू ब्रिंग द फोकस इनवर्ड, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग। ऑफिस में कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा है, सांस पे ध्यान दीजिए। ब्रिंग इट बैक टू योर ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन और एन इमेज ऑफ मेडिटेशन। सपोज आप दुर्गा जी पे आजकल प्रार्थना कर रहे हैं, वो इमेज लेके आ जाइए, या मंदिर में कहे गए हैं बहुत सुंदर मूर्ति देखिए, उस पे इमेज पे कर लीजिए। यू हैव टू ट्रिक योर माइंड इनटू ब्रिंगिंग इट टू बैक टू योरसेल्फ, क्योंकि माइंड बहुत फास्ट भाग जाता है। सब्जी काट रहे हैं आप जैसे, तो उस पर कभी ध्यान देते हैं, और चाकू की आवाज पे कट कट। सब्जी धोते हैं तो उसके टेक्सचर पे ध्यान देते हैं, नहीं देते हम लोग ना। हमारा हाथ कहीं और होता है, माइंड पे होता है। ब्रिंग योर माइंड टू योर हैंड, एटलीस्ट स्टार्ट विद दैट। फील द कीबोर्ड, लैपटॉप ओपन करिए अपने काम के लिए, उसको थोड़ा प्रणाम कर लीजिए, नो ग्रैटिट्यूड। करते हैं हम लोग क्या? पहले करते थे। पहले जॉब लगने को बोलते थे सर्विस लग गई है, मतलब सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए हर चीज के तरफ। आजकल नहीं होता है ना। आजकल मैं किसी से सुन रही थी, कोई बोल रहा था आजकल के बच्चे काम ही नहीं करना चाहते हैं, सबको शॉर्टकट चाहिए। आजकल अच्छे एम्प्लॉयज मिलना मुश्किल हो गए, यहाँ पे एटलीस्ट मिलते ही नहीं है। जो पुराने हैं वो टिके हुए, नए वाले कोई टिकते नहीं है। सिंसियर एम्प्लॉयज मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कर्मयोगियों की कमी हो गई है। पहले ये हमारे रग रग में था कर्मयोग, बट हमको इसी को स्ट्रेंथन करना है। मोर पीपल know what is karma yoga, better the world will become for everybody. Shreyas for everybody, right? It's good.